Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I'll tell you about the moisture conservation in rain-fed areas, how we can increase the rainfall moisture conservation, how we can increase the moisture content in soil in those areas which are dependent on rainfall and irrigation facilities are not available. So in dryland agriculture, total reliance is on rainfall. Whatever moisture is received, rainfall is received, उसी से ही टोटल कल्टीवेशन करना है और यही जो है रेन फेड एग्रीकल्चर है. दैट्स वाई soil moisture conservation is important practice to raise the crop production and productivity. तो ऐसे एरिया में जहां हम पे कोई इरिगेशन सोर्स नहीं है, जितना ज़्यादा हम रेनफॉल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा और हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज दी सॉइल मॉइस्चर कंटेंट और हम जो रेनफॉल है उसको कंजर्व कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक सॉइल में, उसकी अमाउंट को और ड्यूरेशन को. हियर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द अमाउंट, नंबर वन. नंबर टू, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे. So if we want to increase the soil moisture conservation, particularly in rain-fed areas, so three components are very important, or we can say three things are very important. Number one is reduce the runoff. Whatever amount of rainfall is obtained, and a major portion is lost as runoff. So first attempt should be to reduce the runoff. Another is increase the infiltration rate in soil. If infiltration rate increases, then more and more moisture would be conserved. So practice should be aimed to increase infiltration, and this infiltration rate depends on soil properties. Then increase the water holding capacity of soil, and this property also depends on soil properties, soil texture and structure. So there the three things are very important. फिर से इसको जान लें. अगर हमको soil moisture conservation बढ़ाना है तो हमको फर्स्ट क्या करना है, रन ऑफ को रिड्यूस करना है, इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो इन्हीं तीन चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. नंबर वन इज रन ऑफ. देखिए, रन ऑफ in soil depends upon the intensity of rainfall, number one. Number two, soil properties. If intensity is high, definitely there will be more runoff. Another is soil properties related to infiltration rate. अगर infiltration rate कम है, for example in vertisoil, clay soil, then runoff increases. Number third is topographic factor, means length of slope and steepness of slope. If it is more, then definitely runoff will be more. For example, this is the one field, slope is this one, and another slope is this one, and third slope is this one. So in this case, steepness of slope is increasing, and ये मान लीजिए रन ऑफ है, and we have no control over the intensity of rainfall. तो जो रेनफॉल हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को तो हम बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, वो नेचुरल फिनोमिना है. लेकिन ये जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है एज अ रन ऑफ वेलोसिटी, we can reduce the velocity of runoff water. अब देखिए बहुत it is very clear, as the slope will increase, definitely this runoff water velocity will increase. तो हमको क्या करना है, पहले इस runoff जो water है velocity, we have to reduce this velocity. तो हमको पहले ये भी काम करना है कि इसकी velocity को हम reduce करें. तो this picture indicates the relationship between the slope and the फ्लोइंग वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर. तो यहां हम कैसे कम कर सकते हैं, इट मींस लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं रन ऑफ को, तो नंबर वन इज लेवलिंग ऑफ फील्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे फील्ड लेवल होता जाएगा, पूरा तो लेवल नहीं रखेंगे, एक जेंटल स्लोप देते हैं ताकि एक्सेस मॉइस्चर को निकाल सकें. तो एक जेंटल स्लोप रहेगा, लेवलिंग करेंगे हम, देन वी कैन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर. तो फर्स्ट we can say practice is a reduction of runoff through leveling of field.
नंबर 2 इज बंडिंग। बंडिंग हम करेंगे तो बंड्स आर मेड अक्रॉस द स्लोप एंड दिस सच टाइप ऑफ बंड्स आर नोन एज कंटूर बंड। तो फर्स्ट नो व्हाट इज कंटूर। कंटूर ऐसी कोई चीज नहीं है जो फील्ड में हमें नजर आए कि हम फील्ड में जाके कह दें कि ये कंटूर है। कंटूर क्या होती है, एक हम लाइन को इमेजिन करते हैं जो सेम एलिवेशन पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको हम कंटूर लाइन कहते हैं। तो कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइन which connect the points of same elevation and contour lines are always perpendicular to slope. Suppose slope ये जो है इस डायरेक्शन में है, then contour bunds are made in such direction along the perpendicular to slope. So make bund across the slope perpendicular to slope so that the velocity of this runoff water first is cut down. Now देखिए, first due to leveling runoff velocity is reduced, then bunds are there and due to bunds it face obstruction, then water gets more opportunity time for infiltration. तो यहाँ पानी ज्यादा देर तक रुकेगा, बंड रहेंगी, then it will infiltrate into the soil. So such time is known as opportunity time. Opportunity time is that time during which water infiltrate into the soil. तो अब देखिए कि अगर ये पानी आ रहा है, water is moving in this direction and bunds are there, so bund offer a obstruction, then water will accumulate and then there will be more time for infiltration. So first one is reduce the length of slope by leveling. Second one, contour bunding to increase the opportunity time for infiltration. Another is bunding across the field. ये तो हमने बंड्स बनाई हैं, ये तो इस तरह से बंड रहेंगी फील्ड में, कंटूर बंड्स across the slope and then bunding around the field so that if water reach at the end then it does not come out of the field. तो जो भी वाटर हमारा है पूरा फील्ड में रहे और खेत से बाहर ना जाए, और यही आजकल प्रैक्टिस है, खेत का पानी खेत में। तो इट इज पॉसिबल थ्रू लेवलिंग एंड बंडिंग। तो ये बंडिंग हमें कैसे करनी है, कंटूर बंडिंग भी करनी है एंड बंड अक्रॉस द फील्ड एंड ऑन द फील्ड वी एट द एंड जो ये हमारी अक्रॉस द ये बंड चारों तरफ बंड बनी है, we can grow the perennial grasses, so it give strength to the bunds. तो अगर हम इसको perennial grasses को grow कर लें फील्ड के चारों तरफ, then bunds की एक strong रहेंगी, bunds को मजबूती रहेगी and these perennial grasses also serve as a source of fodder. तो हम fodder grasses grow कर सकते हैं, तो ये हमारा advantage है. So by this means we can reduce रन ऑफ। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है रन ऑफ रिडक्शन की। सो दैट्स वाई लेवलिंग एंड बंडिंग टू ऑपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर फैक्टर इज दिस infiltration, increase the infiltration. So if infiltration is increased, so number one, runoff is reduced. So this is very important practice. अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर हमको रन ऑफ को रिड्यूस करना है तो हमें सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा, एंड दिस इन्फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टी एंड पर्टिकुलरली विद टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर. Suppose this is a soil surface and this entry of water is known as infiltration. If soil is fine textured like clay, then infiltration rate is very poor. In clay soil, heavy textured soil where clay content is more, infiltration rate is very slow. But and in case of sandy soil, infiltration rate is very fast. Okay, so this is the property because in clay soil micropores are there और micropores के थ्रू वाटर की एंट्री क्या होती है, बहुत स्लो होती है. देखिए बहुत स्मॉल पोर्स होंगे तो इसके थ्रू एंट्री क्या है, इज वेरी लेस एंड देन रन ऑफ वाटर स्टार्ट. दिस इज द प्रॉब्लम इन वर्टिसॉल्स. वर्टिसॉल्स आर clay rich and there is poor infiltration and there is more loss through runoff. And in case of sandy soils, macropores are there and water entered through this pore very easily. ये तो बहुत क्लियर है कि जहां पोर का साइज बड़ा होगा वाटर जल्दी एंटर करेगा, जहां पोर का साइज कम होगा वाटर स्लो एंटर करेगा. यहां दूसरा क्लॉगिंग हो जाती है पोर्स की, तो ये ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग हो जाती हैं और ये पूरे रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है. यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती.
So as far as infiltration is concerned, sandy soils are very good. Infiltration rate is fast, and in clay soil infiltration rate is very slow. But we cannot change the texture of soil. हम किसी सॉइल का एसएस टेक्सचर चेंज नहीं कर सकते कि क्ले को सैंडी कर दें, सैंड को क्ले कर दें, लेकिन इसमें इसकी सरफेस में वी कैन चेंज और वी कैन ब्रिंग सम मॉडिफिकेशन. हम ऐसा चेंज ला दें, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें कि वाटर की जो एंट्री है वो इंक्रीज कर जाए. तो वो क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन रेट इज डीप प्लॉइंग और ऑफ सीजन टिलेज. डीप प्लॉइंग हम करेंगे तो देखिए, जब डीप प्लॉइंग होगी, सो इन केस ऑफ डीप प्लॉइंग, ये जो पूरा फील्ड है दिस इज एक्सपोज्ड, पूरा जो एक्सपोज हो जाएगा डीप प्लॉइंग ड्यू टू डीप प्लॉइंग, एंड देन रेन वाटर इन्फिल्ट्रेट वेरी इजीली. सो दिस इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम इज इन क्ले सॉइल, सो दैट्स व्हाई डीप प्लॉइंग इज वेरी इफेक्टिव इन क्लेइंग सॉइल इन कॉन्टेक्स्ट टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन रेट. तो जहां क्ले सॉइल है, हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है, क्ले सॉइल मींस हैवी टेक्सचर्ड सॉइल, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल, वहां हमको डीप प्लॉइंग करनी चाहिए वंस इन 3 ईयर्स. तो 3 साल में कम से कम एक बार डीप प्लॉइंग जरूर करें, क्योंकि इसमें सॉइल सरफेस एक्सपोज हो जाएगी, क्लाउड्स बनेंगे, बड़े बड़े क्लाउड्स होंगे, और देन इट कैन कैच रेन वाटर इजिली. अब देखिए, स्मूथ सरफेस जैसे कि स्मूथ सरफेस है, देन वाटर मूव वेरी इजिली. बट दिस इज रफ सरफेस, क्लॉडी सरफेस, क्लाउड्स रहेंगे, रफनेस रहेगी, देन वाटर इन्फिल्ट्रेट इजिली. सो इन सच टाइप ऑफ सॉइल डीप प्लॉइंग particularly in heavy texture soil is very important for increasing infiltration rate. तो अगर हर साल पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन हमारी ये होनी चाहिए कि 3 साल में कम से कम एक बार करें, वंस इन 3 ईयर्स. सो दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड कि हमको डीप प्लॉइंग कब करनी चाहिए? वंस इन 3 ईयर्स. तो इस प्रैक्टिस से हम इसको कर सकते हैं. दूसरा क्या है कि इफ सॉइल वेजिटेशन इज अलाउड टू ग्रो, अगर यहाँ वेजिटेशन है, हमने वेजिटेशन को रखा है, वीड्स हैं, वॉट एवर, ओके, वेजिटेशन कवर है या कोई भी रेजिड्यूज हैं, एंड दीज रेजिड्यूज हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीगेशन. पर्टिकुलरली ग्रासेस आर वेरी इफेक्टिव in increasing soil aggregation, and this aggregates increase the porosity and then water infiltrate very easily. तो ऐसे केसेस में सॉइल को कभी बेयर नहीं रखना है, सॉइल में वेजिटेशन रखें. ऐसा ना सोचें कि हम सॉइल को बिल्कुल, सॉइल सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर दें, बिल्कुल घास हटा दें. घास रहेगी तो नंबर 1, दिस वेजिटेशन फर्स्ट रिड्यूस द रन ऑफ वेलोसिटी, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इससे हमारा रन ऑफ कम होगा. Opportunity time will increase, then soil aggregation will increase because these grass roots are very effective in binding soil particles and in aggregation. Second, this vegetation add organic matter, और this organic matter से क्या होगा? Aggregation improve होगा. तो next strategy is to maintain vegetation cover in soil, over the soil. हम उसको allow करें vegetation को, उसको बिल्कुल ना काटें. बहुत important practice है. तो deep plowing and then vegetation cover to maintain the vegetation cover. So infiltration rate can be increased. Third one is increase the aggregation, soil aggregation. क्योंकि जो roots ये काम कर रही हैं grasses की, aggregation को improve कर रही हैं. If we increase the aggregation, macro aggregates जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर हम बढ़ा दें, aggregation कर दें, तो सॉइल में पोरोसिटी बढ़ेगी और उस पोरोसिटी से इन्फिल्ट्रेशन होगा. सो एड द ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए किस सॉइल के लिए हम कर रहे हैं. ये पर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है हैवी टेक्सचर सॉइल में है, क्ले सॉइल में है. क्ले सॉइल की अगर हम पोरोसिटी देखें, टोटल पोरोसिटी इन केस ऑफ क्ले सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल. अगर हम टोटल पोरोसिटी की बात करें तो क्ले सॉइल की ज्यादा होती है सैंडी सॉइल से. तो फिर हमको ऐसा लगता है कि जब क्ले सॉइल की पोरोसिटी ज़्यादा है तो फिर इसमें इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्यों है? क्ले सॉइल की नो डाउट पोरोसिटी ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, माइक्रोपोर्स हैं, उसके थ्रू बहुत कम है. क्लॉगिंग पोर्स की हो जाती है बहुत जल्दी, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है और रन ऑफ बढ़ जाता है. हेयर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन. तो फर्स्ट मेंटेन द रफ क्लॉडी सरफेस, expose the soil through deep tillage. Second, maintain the vegetation cover, which increases the opportunity time through obstruction in runoff. Then these grasses increase the soil aggregation through roots. तो ये अगर हम 3 प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को हम ऐड करें,
तो सॉइल एग्रीगेशन होगा। यहाँ मान लीजिए हमने ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया, सो दिस ब्लू डॉट्स सपोज एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर थ्रू डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स, secretes polysaccharides through microbial activity. Polysaccharides are there, some organic acids are there, and then this micropores, we can say the quantity जो है micropores की क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, and aggregation will improve. So that's why addition of organic matter in clay soil is highly advantageous with respect to infiltration rate and porosity. तो यहाँ देखिए जब हम एडिशन करेंगे तो अभी जो मैंने प्रोसेस बताया उसके थ्रू एग्रीगेशन इंप्रूव होगा। अब ये हाउ टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर, थ्रू FYM, थ्रू कंपोस्ट, थ्रू क्रॉप रेजिड्यू, थ्रू ग्रीन मैन्योरिंग। अब रेनफेड एरिया में ग्रीन मैन्योरिंग की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको एक जो पहला लेक्चर है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया, देयर इज अ प्रॉब्लम इन ग्रीन मैन्योरिंग बिकॉज ग्रीन मैन्योरिंग रिक्वायर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट वी कैन अडॉप्ट द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम और काउपी। तो जो भी हम पे रेजिड्यू है, ट्विग्स हैं, श्रब्स हैं, उसको हमें यूज करना चाहिए टू इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन रेट। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इनफिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अनदर इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज दिस। तो अभी हमने पहले क्या किया, व्हेन देयर इज अ रेनफॉल, फर्स्ट आवर एफर्ट्स इज टू रिड्यूस द रन ऑफ वॉल्यूम एंड रन ऑफ वेलोसिटी, देन सेकंड एफर्ट इज टू increase the infiltration rate, and next effort is increase the water holding capacity of soil, and this water holding capacity of soil depends upon the pore nature and soil aggregation. Suppose this is soil, okay, in clay soil micropores are there, and in case of sandy soil macropores are there, and here infiltration is low and here infiltration is very high. But the problem in case of this is clay soil, clay content is more, here sandy soil, light textured, this is heavy textured, and this water holding capacity of this clay soil is more, and in case of water holding capacity of sandy soil is low because of gravitational pull, water percolate deep. But here capillary action is there, micropores are there, so because of capillary action water is retained in soil and very less percolation. Gravitational force is there, but effect of gravitational is less. Here capillary force is more. तो soil में क्या होगा कि water holding capacity तो इसकी ज़्यादा होगी, but here water holding capacity is low. It means now our efforts in clay soil is to increase the infiltration and improve the aggregation, and here increase the water holding capacity of soil. अब इसकी water holding capacity कैसे होगी, जब इसमें micropores का थोड़ा कंटेंट बढ़े और macropores का कंटेंट कम हो, but we cannot change the texture. सॉइल का टेक्सचर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी पे प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें गुड प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज देयर, then mineralization is there, organic acids are there, microactivity is more, then aggregation is increased, then water holding capacity can be increased, particularly in sandy soil, and similar is the case with the clay soil. यहाँ देखिए clay soil में ऑर्गेनिक मैटर एडिशन करने से इसकी टोटल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होगी, इन्फिल्ट्रेशन इंप्रूव होगा, तो हम वी कैन कंजर्व मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल वाटर. So that's why organic matter addition, whether it is clay soil or sandy soil, is helpful in both type of soil. तो ये अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, then we can increase water holding capacity of soil and moisture can be retained for longer period. Now another is कि ये जो मॉइस्चर जो कंजर्व हुआ है, इसको कैसे हम लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करें. सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज यूज ऑफ मल्च. तो अगर हम इस पे आफ्टर रेनफॉल वी आर यूजिंग मल्च, देन दिस ऑर्गेनिक मल्च इज इजली अवेलेबल. तो प्लास्टिक मल्च भी है, हालांकि वो बहुत कॉस्टली है और रेनफेड एरिया में हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं. ऑर्गेनिक मल्च इज इजली अवेलेबल. क्रॉप रेजिड्यू, लीव्स, ट्विग्स, श्रब्स वी कैन पुट ओवर सॉइल सरफेस. तो ये क्या करेगा, देन दिस मल्च विल रिड्यूस द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल. देन दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस सॉइल मॉइस्चर कैन बी इंक्रीज बाय ऑर्गेनिक मल्चिंग. तो ये एक प्रैक्टिस है. फर्स्ट, टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल थ्रू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो डीप टिलेज है उससे भी
जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि एग्रीगेशन इंप्रूव होता है। तो डीप टिलेज के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। और देन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देन मल्चिंग। सो हेयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डीप टिलेज। डीप टिलेज सॉइल प्रोफाइल को एक्सपोज करेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, देन मल्चिंग। And another important point in increasing water holding capacities is to break the hard pan if there is hard pan in soil. In general, what happens in soil कि soil में hard pan develop हो जाती है at about 30 centimeter, 25 centimeter, 40 centimeter, and this subsoil hard pan is dangerous and is not beneficial for the plant. Suppose this is soil surface and at about 30 centimeter or 45 centimeter clay deposition is there, and this clay deposition particles or calcium carbonate deposition make a hard pan which is very hard and also known as a clay pan. And in mechanized area where heavy machines are used, so because of compaction, heavy load, this subsoil layer become hard. So this may be hard layer. When there is a hard layer, then infiltration is there, percolation is there, then there is no further percolation. It means this first one, soil profile depth is reduced, then this is easily saturated with the soil, and then further after saturation water accumulate over soil surface and then it start to as a runoff. So soil runoff is there, soil loss is there. Then root development is poor because this depth of profile is reduced. तो जब हार्ड लेयर डेवलप हो गई और जितनी शैलो या हार्ड लेयर होगी 20 सेंटीमीटर पे होगी या 15 पे डेवलप होगी तो देखिए बिल्कुल खतरनाक है, वेरी डेंजरस। हमारी जो सॉइल की डेप्थ है फर्स्ट वो रिड्यूस, देन रूट डेवलपमेंट इज रिड्यूस्ड, देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड और सारी प्रॉपर्टी सॉइल की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो दैट्स वाई ब्रेकिंग ऑफ दिस हार्ड पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बता भी चुका हूँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन रेनफेड एरिया में। इसको हम चीजल प्लाव से या सब सॉइलिंग से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। चीजल प्लाव इज वेरी इफेक्टिव एंड सब सॉइलर इट इज a machine which can be used and this is known as सब सॉइलिंग। तो जो हम डीप टिलेज करते हैं सब सॉइल की डेप्थ तक उसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सब सॉइलर, अदरवाइज वी कैन यूज चीजल प्लाव। तो अगर ये हार्ड पैन देखिए ब्रेक हो गई, यहाँ से इसको हमने प्लाव से ब्रेक कर दिया, अब देखिए ये सॉइल प्रोफाइल डेप्थ बढ़ जाएगी और ये वाटर विल परकुलेट मोर एंड देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। सो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल थ्रू ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन। इसमें एक पॉइंट छूट गया है रन ऑफ का कि थ्रू वर्टिकल मल्चिंग वी कैन रिड्यूस द रन ऑफ एंड इंक्रीज द infiltration of soil, and for this we adopt a practice which is known as vertical mulching. Mulching कई तरह की होती है, vertical mulching, and this vertical mulching is adopted in heavy textured soil, vertisol, where runoff is a problem. Suppose it is a vertisol soil, clay soil, okay, clay content is more, then runoff will be very less and immediately after rainfall runoff will start. So this is the problem in heavy textured soil, clay soil, जो भी मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर हम ट्रेंच बनाएं अक्रॉस द स्लोप, वैसे बंड तो हम बनाते ही हैं, अगर हम इसको ट्रेंच बनाएं, ये हमारा फील्ड है और हमने ये ट्रेंच बनाई, इस तरह की ट्रेंच बना दी हमने थोड़े थोड़े दूर के इंटरवल पे 20 मीटर 30 मीटर। Okay, so water will move in this direction and will accumulate in this trench, and then we can put some vegetative material inside this in vertical position. इसको ऐसे हम खड़ा कर दें, इसको हम ऐसा खड़ा दें, ट्रीज की हम ट्विग्स रख सकते हैं, लीव्स रख सकते हैं। So this it means these organic residues are used. So first water come into trench and then it will
saturate this area. So infiltration is increased, runoff velocity is reduced, opportunity time is reduced, and then this organic residues are put. हम कोई डंडी खड़ी कर सकते हैं, twigs हैं, shrubs हैं, कटे हुए जो पेड़ की branches हैं, उसको हम इसमें डायरेक्टली सीधा खड़ा करते हैं in vertical position. That's why it is known as vertical mulching, and this help in addition of organic matter and improve the aggregation and obstruct inflowing runoff water. तो ये 5-10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ये खड़े रहते हैं, इस तरह से सकते हैं. अब देखिए जो वाटर का फ्लो होगा उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, and then water will infiltrate in this trench and then will saturate this area. So in this way we can increase the soil moisture content, and this practice is known as vertical mulching. तो ये मैंने आपको बताया कि how we can increase the soil moisture content in rainfed area, soil moisture conservation practice in dryland and rainfed areas. And 3 focus point are: number 1, first, reduce the runoff. Adopt such practice which are helpful in reducing runoff. Then try to increase the infiltration, and then increase the water holding capacity of soil through aggregation, addition of organic matter, through roughness, through clouds, by breaking hard pans. तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस बताई क्या प्रैक्टिस है, एंड दिस प्रैक्टिस आर वेरी हेल्पफुल इन सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.